Hello and welcome everyone. I'm Ujjwal Batra, and in this video I will be talking about the sutras of meditation that were taught to me. Before I start speaking, I completely express my gratitude to all the teachers who have been so kind and so very, very beautifully participating in my spiritual journey. And the information that I'm going to share with all of you today is dedicated to one of my teachers out of the many teachers who have been supporting my spiritual journey. So Dr. Newton especially passed on this knowledge to us, and it was his, intention as well that maybe share this more, that maybe share the, the learnings and teachings of meditation more. सो मैं पहले ही एकदम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रादर देन यू थिंकिंग में कि अरे ये तो उज्जवल का ही कुछ special hai. Definitely, the way I will be speaking, I have processed it in on my way. But it's just my heart's wish to dedicate it to my teacher, one of my teachers, yeah. And very beautifully, he has shared these sutras. So I'm passing it on to you the way I have received it. And it's just see understand it as if कि सब्जियां उन्होंने दी हैं, सब्जी मैं बना रहा हूँ उसकी, तो देखते हैं कि सब्जी आपको कैसी लगती है. ठीक है. So why I'm sharing this with all of you participating in our 40 days meditation practice is because this is one topic which motivated me and inspired me to meditate. I've been meditating in a lot of different ways, but this really deepened my understanding in meditation, and as if I felt empowered after learning the sutras. And I experienced them in my life. And जब वो मैंने आत्म अनुभव करा, जब वो आत्मज्ञान हुआ, इसको ये हमारे दो सूत्र भी हैं, हम इनको समझेंगे. जब वो सेल्फ एक्सपीरियंस हुए ना और रियलाइजेशंस होनी शुरू हुई, and then I realized, and that how beautiful would it be if I share it further. And I've been sharing it for a while. So the classes that I used to take in Delhi when I was putting up in Delhi for many years, those of you who attended that must have heard me talking about these sutras earlier as well. So let's start talking about the sutras of meditation, right? So देखिए, the first sutra, the first sutra that I would like to talk about is the sutra of meditation, which is called as सहज स्थिति. सहज स्थिति का क्या मतलब हुआ? सहज स्थिति ये बताती है that we have to be सहज. We have to, हमारी जो स्थिति होनी चाहिए ध्यान की, वो सहज होनी चाहिए, वो एफर्टलेस होनी चाहिए. तो हमें बहुत परेशानी से कि मुझे, हाँ, इट इज डेफिनेटली गुड टू सिट. मैंने पिछली बारी भी बात करी थी सेकंड वीडियो में कि पीठ सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए, एंड चेहरा थोड़ा खुश होना चाहिए. और चाहे आपने चौंकड़ी मारनी है या अपने टांगों को क्रॉस करना है, मतलब पाँव के ऊपर पाँव रखना है, वो सब सही है. बट आप बड़े ही अलग एक आसन में या कोई स्पेसिफिक योग आसन में बैठ के करें, या बड़े परेशान होके करें, या बॉडी के लिए वायलेंटली करें, या बड़ा इरिटेट होके मेडिटेशन करें, तो उसका वो मेडिटेशन नहीं है. वो या तो आप फोर्स कर रहे हो अपने आप को जबरदस्ती, या आप अपनी ईगो फुलफिल कर रहे हो, या आप अपनी बॉडी को वायलेंटली टॉर्चर कर रहे हो. सो टू बी इन द स्टेट ऑफ मेडिटेटिवनेस, धारणा से ध्यान तक जैसे मूव करना है. हमने धारणा और ध्यान समझा था फर्स्ट वीडियो में. धारणा जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन है, प्रैक्टिस ऑफ वॉचिंग द अवेयरनेस ऑफ योर ब्रेथ है, उससे जब हमारे को मेडिटेशन जो नो माइंड सेट जो लिटरल मेडिटेशन है, हम तो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट टू बी मेडिटेटिव, बट टू बी इन द मेडिटेशन इज व्हाट द रियल एक्सपीरियंस इज. नो, सो वो हम सबका गोल एक तरीके से कि हम उस ध्यान को लगाना सीखें, हम ध्यान में लीन हों. सो वो जो वहां तक की जर्नी है, इसको सहज बनाओ. So your state has to be effortless. Meditation is being, is a natural state for your body. Do not make it unnatural for yourself. Be effortless. Okay, so that is why you must have heard me talking many times in my guided meditations that to be in meditation is to be in सहज स्थिति. तो सबसे पहले इस प्रोसेस को एफर्टलेस बनाओ कि ओह, उज्जवल ने बोला सांसों को देखना है, अब मैं देख रहा हूँ, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है. इतना ध्यान, इतना प्रेशर आपने इस चीज पे लगा दिया, तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? आप तो प्रेशर के अंडर हो. ये बचपन का भी स्कूल वाला प्रेशर आ गया कि मेडिटेशन में भी जीतना है. यहाँ पे जीतना नहीं है, यहाँ पे तो एफर्टलेस होके जस्ट
ऑब्जर्वेशन की स्टेट में आ जाना है, अवेयरनेस की स्टेट में आ जाना है, वही मेडिटेशन है। तो पहला सूत्र हमने कवर करा विच इज सहज स्थिति। अब सेकंड समझते हैं, सेकंड सूत्र चित्त वृत्ति निरोध। सो चित्त, हमारे जो दिमाग में, हमारे जो कॉन्शियस माइंड में जो चीजें चल रही हैं, चित्त वृत्ति का क्या मतलब होता है? रैमिफिकेशन ऑफ माइंड। सो रैमिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? सो द ब्रांचिंग आउट, the things which are not very welcomed, and they're just coming, and they are the branches of mind and unwelcome thoughts। बैठते हैं हम, शांत बैठते हैं, कभी यहाँ आ गया, एकदम से बैठे बैठे आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम से आइसक्रीम का कोन आ गया, आइसक्रीम कोन से ओ आइसक्रीम कोन मैंने फलानी जगह पे खाया था, वो ठंडी जगह पे मैं ट्रेन से गया था, ट्रेन याद आ गया, अब रेलवे इंडस्ट्री याद आ गई। हम बैठे मेडिटेशन पे थे, अब रेलवे इंडस्ट्री का मिनिस्टर याद आ गया, अच्छा रेल इंडिया में कौन लेकर आया था, अंग्रेज लाए थे, फिर हम फॉरेन चले गए अपने दिमाग में। देख रहे हो ब्रांचिंग आउट कैसे हो रही है थॉट्स की? निरोध। तो चित्त वृत्ति निरोध, जब हम इससे मुक्ति पाना शुरू कर देते हैं, तो चित्त वृत्ति निरोध इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। कि जब हम इतनी, ये जो हमारी दिमाग की, जिसको हम चर बोलते हैं, हमारे दिमाग का चैटर है, इंसेसेंट चैटर, लगातार जो ये हमारा बातें हो रही हैं, जो अननेसेसरी बातें हो रही हैं, उसने मेरे साथ ये किया था, वो हमेशा ऐसे करता है, ओ अब उसने ऐसे कर दिया, अभी वो कर रहा होगा, उससे ज्यादा उसकी मम्मी की याद आई, उसकी मम्मी की तो यहाँ पैदा हुई थी, अब हम फिर फॉरेन चले गए, अच्छा वहाँ ऐसे हुआ था, वहाँ ये हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, अच्छा कल मुझे ये बनाना है, अब मुझे ये करना है। यही सब तो होता है आपके दिमाग में। या ओ मैं मेडिटेशन में बैठ रहा हूँ, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, अरे उसने ऐसे कर दिया तो वो क्या सोचेगा, अरे ऐसा ये हो गया वो हो गया। अपने थॉट्स को कभी, आप लोग अब मेडिटेटर्स बनने लग गए हो, आप लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लग गए हो, आपने देखा होगा ऐसा होता है। सो इससे मुक्ति पानी है, और वो मुक्ति कैसे पाएगी? ओनली व्हेन यू विल लर्न टू वॉच योर ब्रेथ। क्योंकि देखो, किसी बंदे के लिए बोलना तो बड़ा आसान है, एम्प्टी योर माइंड, लेट गो ऑफ द थॉट्स। अरे भैया कैसे करें? सो उसकी थेरेपी ने जैसे और भी उसके एफिशिएंट टूल्स बनाए हैं, बट द बेस्ट वे जिसमें टू मास्टर योर मंकी माइंड इज वॉचिंग योर ब्रेथ। सो ब्रेथ इज योर गुरु, क्योंकि वही चीज है जो आपके साथ है भैया। सो जब तक आप जीवित हो, आपका सांस आ रहा है, नॉर्मल नेचुरल सांस आ रहा है, उसी को आपने लेना है। उसी के साथ जब आप अपनी दोस्ती पाने लग जाते हो, तब आपका ध्यान लगने लग जाता है। सो ये आपने नोट भी करा होगा कि आप मेडिटेशन में जब तक आप ब्रेथ पे ध्यान नहीं लगाते हो, ये थॉट्स आते हैं, जैसे ही आपको एकदम से याद आता है, ओह उज्जवल ने कहा था ब्रेथ पे ध्यान देना है, फिर ब्रेथ पर वापस आते हो तो माइंड चुप होना शुरू हो जाता है। ये होता है, राइट? सो जितना हम मास्टरी कर लेंगे अपनी ब्रेथ के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर, द आवन जावन पर, राइट, उतना हमारा मंकी माइंड भी मास्टर होता चला जाएगा। और मंकी माइंड क्यों बोलते हैं? कि जैसे मंकी यहाँ यहाँ कूदता रहता है, तो उस तरीके से हमारा दिमाग के थॉट्स भी तो इधर उधर कूद रहे हैं ना, तो उसको काम डाउन कर लेना, उसको शांत कर लेना है। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेडिटेशन विच इज कॉल्ड एज कि चित्त वृत्ति निरोधक, कि हम अपना मेडिटेशन इज नॉन डूइंग स्टेट। सो जब लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ जब आपने मेडिटेशन बोला तो हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम विजुअलाइज भी कर लें। सो मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो टेक्निकल प्रोसेस विच इज वेरी पावरफुल इन हीलिंग, वेरी वेरी पावरफुल इन हीलिंग, बट वो साधना नहीं है, वो आपकी इनर, वो उससे आपकी मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, आप चीजों को प्लान कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बट उसमें आप नो माइंड स्टेट में अपने माइंड को एम्प्टी नहीं कर रहे हो। सो विजुअलाइजेशन को भी आप करो और खूब करो, और गाइडेड मेडिटेशन भी खूब करो, वो आपका एक प्रोसेस है, वो आपका डायरेक्टेड प्रोसेस है। बट अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एवोल्यूशन के लिए, अपनी मेंटल फिजिकल इमोशनल प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेडिटेशन, sitting calmly, trying to and practicing emptiness of your mind is what is the real process. अब जैसे जितनी भी हम हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, they are great and they are beautiful, but the fastest way to evolution is कि आप उनको मेडिटेशन के साथ सपोर्ट करो, क्योंकि वो तरीके हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो टूल्स हैं। मेडिटेशन एक टेक्निक नहीं है, मेडिटेशन एक टूल नहीं है, मेडिटेशन इज योर नेचुरल स्टेट। ये याद रखना, जब जिसको ये चीज समझ आ गई, उसको समझ आ जाएगा कि मैं मेडिटेशन में सिखाना क्या चाह रहा हूँ, राइट? सो द टोटल सेसेशन ऑफ दीज वेव्स, जो लगातार ऊपर नीचे वेव्स चल रही हैं, जब ये शांत होने लग जाएंगी, इनका एम्पलीट्यूड घट जाएगा, ये बारीक हो जाएंगे। वो होएगा, मैं बता रहा हूँ, वो होता है। मन में लगता है ऐसे कैसे होएगा, बट जब आप बैठना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन के टाइम को बढ़ाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ता है।
क्योंकि बहुत बारी अगर हम 10-15 मिनट करें, इट्स गुड टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस विद दैट, बट 10-15 मिनट 20 मिनट तो हमारे मन को शांत होने में लग जाते हैं। मेडिटेशन तो उसके बाद शुरू होती है। 40 मिनट्स में कितनी रिसर्चेस में लोगों ने देखा कि 40 मिनट के बाद हमारा दिमाग की वेव्स थोड़ी बदलनी शुरू होती हैं। सो हम बीटा से अल्फा की तरफ मूव कर रहे होते हैं, राइट? सो वैसे तो आप देखो कभी कभार हम 5 मिनट में भी अल्फा स्टेट में मूव करते हैं, बट हाउ आवर वेव्स काम डाउन, हाउ द फ्रीक्वेंसी काम्स डाउन, इट इज ऑल्सो सेड कि 30 से 40 मिनट लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लंबी मेडिटेशन का, हम लोगों को क्या है, हम लंबी मेडिटेशन क्यों सजेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, कि फिर आपको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस डीपर होना मिलने लग जाएगा, यू नो, आपको एहसास होने लग जाएंगी चीजें, आपका एम्प्टीनेस बढ़ने लग जाएगी। So witness yourself, witness your body's processes, witness the breath, witness everything as a third party in meditation. Do not get involved. Even meditational experiences भी हो रहे हैं, तो जैसे visualization करने की जरूरत नहीं है, but visions आ रही हैं, दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं है, but कुछ दर्शन हो रहे हैं, कुछ प्रतीत हो रहा है, वो आपके meditational experiences हैं, colors दिख रहे हैं, तो उनको रोको मत। कुछ फ्यूचर दिख रहा है, कुछ मास्टर्स दिख रहे हैं, कुछ हीलिंग हो रही है, कुछ बॉडी में हो रहा है, उसमें अटैच मत हो कि ओ आज मेरे इतना दर्द हुआ, क्यों हुआ होगा, अच्छा यहाँ हुआ, अच्छा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड तो इससे कनेक्टेड होती है, अच्छा लेफ्ट साइड तो फेमिनिन भी होती है, मदर साइड होती है, अच्छा उससे हो रहा है, ये हो रहा है, इतना अटैच मत हो एक्सपीरियंस से, होने दो, विटनेस द प्रोसेस एंड जस्ट स्टे डिटैच्ड। दिख रहे हैं, किसी के दर्शन हो रहे हैं, बहुत लोगों को दर्शन होने लग जाते हैं, जो लोग हायर बींग्स में मानते भी नहीं थे, उनको मेडिटेशन में चीजें दिखने लग जाती हैं, ब्यूटीफुल पावरफुल पॉजिटिव बींग्स। सो उसको उस दर्शन को रिसीव करो ओपन हार्टेडली। एक्सपीरियंसेस से अटैच मत हो, बट ऑब्जर्व देम एज अ थर्ड पार्टी, एंजॉय देम, सेलिब्रेट देम, विटनेस देम, राइट? सो ये हमने समझा सेकंड सूत्रा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम समझते हैं। सो एक तरीके से अगर आप, हाँ मैं बता रहा था कि मेडिटेशन में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, विजुअलाइज नहीं करना है, या अपने यहाँ यूं हाथ रख के कुछ करने की जरूरत नहीं। मेडिटेशन इज नो एक्शन स्टेट, इट इज नो माइंड स्टेट। सो विजुअलाइजेशन में वी आर क्रिएटिंग अ लॉट थ्रू माइंड, मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग द माइंड, इट इज द डिसोल्यूशन प्रोसेस। सो जिसको ये भी मेरी बात समझ आ जाएगी, उसको और चीज समझ आ जाएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? एंड बार बार ज्वाइन कीजिए इन सर्कल्स को, बार बार 40 दिन के अपने आप को चैलेंजेस या प्रैक्टिसेस दीजिए, एक्सरसाइजेस दीजिए, फिर खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, और जब जब मैं करता हूँ रिपीट कीजिए, वीडियोस को बार बार देखिए, अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए, और अपने आप आपको अपने आप सब कुछ मिलेगा, राइट? चलिए अब हम तीसरे सूत्र पर चलते हैं, विच इज आनापानासति सूत्र। सो आनापानासति इज अ टर्म कॉइन्ड बाय बुद्धा, गौतमा द बुद्धा. बुद्धा मीन्स वन हु इज अवेक. सो इट इज गौतमा द बुद्धा हु गॉट अवेक, राइट? जिनके बारे में हम बात करते हैं. So anapanasati, it's a Pali word. It's coined by Gautama the Buddha, and he gave us that meditation, and that is the meditation that we are practicing, right? So we understood that ana means in breath, apana means out breath, and sati is to stay with it. So the whole process of anapanasati is to stay with your breath. The most beautiful part of this practice is कि इसमें आपको कोई रेचक कुंभक कुछ नहीं लगाना है. There is no, special initiation required. There is no guru needs to be sitting and initiate you or tell you everything all the time. It's just कि support चाहिए होता है कभी कभार, वो भी inspiration के लिए. You do not need anything, और आप इसको कहीं भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि फलानी जोत लगानी है और ऐसे करना है. इससे आप अपनी साइकोलॉजिकली भी अपने आप को हील कर सकते हो, स्पिरिचुअली इंप्रूव कर सकते हो, मेंटल इमोशनल फिजिकल इश्यूज को ठीक कर सकते हो, इंटेंशंस डाल सकते हो अपनी, ओवरऑल लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल कॉस्मिक एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर दोगे आप, कि फिर आपके अपने आप लाइफ के सारे स्टेट्स हील होते जाएंगे, विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट? सो वी अंडरस्टैंड दैट आनापानासति इज easy and natural breathing, where you don't have to specifically focus on some typical form of deep breathing, yeah, aisi breathing, yeah, this pranayam or that pranayam. It's just normal natural breath. If you take long and deep breaths, you take that. If you take short and shallow breaths, you take that, right? How much to do? So as much as you can, right? As much as you can. But Brahmarshi Patriji suggests that you should do meditation equivalent to the number of years your age is, utne minutes. So if you're 21 years old, you will do it for 21 minutes. If you're 40 years old, you must do it for 40 minutes. 1 minute for each year of your age, right? But I suggest start from 10, 15, 20 minutes.
take it as a 20-21 minute practice, then make it a 30-minute practice, then 40 minutes. So 40 minutes is my favorite, that 40 to 60 minutes then you can take, but आप जितना और चाहें उतना भी कर सकते हैं, right? So in today's video, we have discussed 3 sutras, and there are 7 more that we will discuss in the upcoming videos. हम इसको part 1, part 2, part 3 ऐसे करके समझेंगे. आज के लिए इतना बहुत है. इन तीनों सूत्रों को समझिए, चाहे इस वीडियो को रिपीट पे देखिए, and देखिए how can you incorporate this new beautiful knowledge, this information in your meditative practice and improve your meditation. Yeah, so thank you so much. I'm Ujjwal Batra, and I really hope that you understood and you liked understanding the sutras of meditation. We will understand deeply more, understanding the importance, the art, and the preference and the energy of meditation in our lives more beautifully and more deeply in the upcoming videos. Thank you. Om Shanti.